Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, everybody. Yes, join very fast. Good morning, sir. Good morning, beta. Yes, ready? Yes, Ready, sir. beta? Yes, see. Yes, sir. Yes, Ready, sir. sir. Yes, sir. Exercise Ready. A. Exercise, Good morning. right? Take the sentence. Take the sentence that have interrogative pronoun. Interrogative pronoun Yes, sir. and क्रॉस CROSS क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे टी का मतलब ऐसे ब्रैकेट में टिक रहेगा, राइट? क्रॉस दोज दैट हैव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, राइट? सी हियर Yes, sir. the first sentence and second, what book are you reading? What What are you book reading? are what book are you reading? Next, which umbrella is yours? Which umbrella is yours? Yours. Next, what did you say? Did you say? And last sentence, whose is the bag? Whose is the bag with a black belt? With a black belt. Listen here. Class C. I have written here 4 examples from your books. First sentence, what book are you reading? कौन सी पुस्तक? What book means कौन सी पुस्तक are you reading? आप पढ़ रहे हैं, right? You have take the sentence that have interrogative pronoun, right? If your word is interrogative pronoun, in that case tick, and if your word is interrogative adjective, you have to cross. So first all we will try to recognize why this word is called interrogative pronoun or interrogative adjective. क्यों कहेंगे इसको आप देखते हैं. Listen carefully. After what, right? After which, after what, after whose, right? This type question word is already given in starting, and just after question word, if already given any verb, right? इनके बाद कोई verb दी गई है, in that case these words are called the interrogative pronoun, right? Interrogative pronoun कह जाएंगे. Listen again. Just after this question word given any helping verb, in that case these words are called the interrogative pronoun. And if this word, after this word given any noun, in that case these words are called the interrogative adjective, right? तो यहां देखिए फर्स्ट में
After what? Here is given the word book, and book is the noun. This is the reason what is called the interrogative pronoun. Pronoun. Right? Yes, sir. Interrogative pronoun यहाँ पे आपको ठीक कर देना है like this. Any doubt? No, sir. Yes. Next sentence. You can see here which umbrella. Sir, ये भी interrogative pronoun है. Yes, after which here is given the umbrella. This is also noun. It means which is also called the interrogative pronoun. Any doubt? No, sir. Yes. आइए थर्ड नंबर. What did you say? आपने क्या कहा? What did you say? You can see here after what here is given the क्या चीज verb did, right? Hello. Yes, sir. Here is given did. It means what is called the interrogative adjective. सब incorrect है. Yes, sir, interrogative incorrect है, adjective. क्रॉस कर देना है, right? क्रॉस. आपको इसमें Yes, लिखा sir. हुआ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए you can cross here. Next. Yes, sir. Whose is the bag? Yes, here is Sir, ये also given correct. after whose is, right? Correct, sir. Whose is called the, बोलिए, interrogative adjective. It means cross here. So in this way you can write others. Any doubt, beta? Sir, fourth number में correct होगा ना? whose के बाद सर हेल्पिंग वर्ब ना है सर is whose के बाद verb है. हाँ तो वर्ब रहे, लिसन वर्ब रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव सर नाउन रहेगा सर तब ना. व्हाट बेटा? सर नाउन रहेगा तब ना. सर नाउन रहेगा तब ना सर. Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं, हमारी बात को सुनिए. आई एम टेलिंग यू दैट आफ्टर दिस क्वेश्चन वर्ड इफ गिवन नाउन दैट पीरियड इंट्रोगेटिव वर्ड इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट? उसको हमें क्या कर देना है? ठीक करना है. प्रोनाउन होने पर यानी इसके बाद अगर नाउन रहेगा तो प्रोनाउन कहलाएगा, उसको ठीक करना है बेटा, राइट? Yes, sir. और नीचे वाले में क्या दिया है, थर्ड और आपका फोर्थ में, कि हुज के बाद ये वर्ब दिया गया है, तो इस वजह से हुज को हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे, यह एडजेक्टिव तो है. interrogative adjective. यस, Yes, sir. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. और इस वजह से इसको क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है, इनकरेक्ट कर देना है. कोई डाउट? No, sir. तो ऐसे करना है बेटा. आगे बढ़े. Yes, sir. यस, तो लाइक दिस अदर they are given the other sentences. They are given total 10 sentences. You can do yourself if you have available the book. Otherwise, I am saying Yes, the sir. answer of the evening time, right? Yes, अब sir. आइए देखते हैं नेक्स्ट बेटा. एक्सरसाइज एफ, सी हियर. एक्सरसाइज एफ. इसमें आपको सबसे पहले पोसेसिव प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं. सी हियर. Yes, sir. पोसेसिव प्रोनाउन सी. Possessive pronoun, P-O-S-S-I-V. Possessive pronoun. ये देखिएगा, what is the possessive pronoun? I have already told you the personal pronoun. अब पर्सनल प्रोनाउन में हमने बताए थे possessive adjective as well as possessive pronoun. देखिए, I am going to write here. Suppose mine, O-U-R-S, ours, yours, yours आपका है. नेक्स्ट his, H-I-S, his, H-E-R-S, hers, T-H-E-I-R-S, theirs, and I-T-S, its. These words are called the possessive pronoun, right? ये आपको पर्सनल प्रोनाउन में हम एक चार्ट बनाए थे, आपको शायद ध्यान होगा. यू कैन सी देयर इफ यू हैव फॉरगॉटन, तो यू कैन सी देयर दिस टाइप द वर्ड, राइट? तो इसका हमें यूज करना है. कैसे करना है? हम सीधे कहां पे आ रहे हैं? ठीक द क्या चीज आपका एफ नंबर पे है, इसको देखिए, राइट? F number exercise. यस, सीधे यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आएगा. टिक
Yes, tick the sentence as. सर ये मत लिखिए, रहने दीजिए सर, स्पेस ज्यादा ले ले रहा है। तो चलिए, आपको दिक्कत नहीं सर आएगी। आपके पास नो सर, जिनके पास बुक है उनको तो दिक्कत नहीं आ रही होगी, पर जिसके पास नहीं है शायद दिक्कत आ सकती है। यस सर। हाँ, तो प्लीज लिखने दें आप। द सेंटेंसेज लिख दीजिए सर, तब ठीक sentences रहेगा। that use possessive pronoun and cross the sentences that use possessive adjective ये ध्यान दीजिएगा। आपको पसेसिव प्रोनाउन और उसके बाद पसेसिव जो है एडजेक्टिव आपको क्या करना है, इसमें शो करना, बताना है, राइट। पसेसिव अगर प्रोनाउन Yes, sir. आएगा तो आपको ठीक करना है, पसेसिव एडजेक्टिव आएगी तो आपको ऐसे क्रॉस कर देना। टू तरीके का मार्क आपको करना है। देयर इज ऑलरेडी गिवन द स्पेस, राइट। अब देखिए हम सेंटेंस लिखने जा रहे हैं। सी हियर, यहां पे दिखाई दे रहा है क्या नीचे? चलिए दिखाई देगा आपको शायद। सी हियर, पहला आपको दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए अब, अंजू मीट्स हर मदर एवरी डे। ध्यान दीजिएगा, अंजू मीट्स हर मदर एवरी डे, एवरी डे, EVERY एंड जस्ट आफ्टर डे स्पेस दिया गया। अभी हम बताएंगे, एक एग्जाम्पल और लिखने दीजिएगा। आगे लिखा आपका, विवेक कार इज व्हाइट, विवेक कार, ये पोस्ट ऑफ ही है सर, कार इज व्हाइट, फुल स्टॉप, MINE, माइन इज रेड। यहां ध्यान दीजिएगा, लिसन हियर बेटा, आपको इसमें शो करना है। यू कैन सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, अंजू मीट्स हर मदर एवरी डे। यहां पे देखिए हर लिखा है, उसके बाद दिया है मदर, राइट। और सेकेंड सेंटेंस में लिखा है विवेक कार इज व्हाइट, जस्ट आफ्टर लिखा है माइन इज रेड। यहां पे आपको दिया गया माइन और यहां पे लिखा है हर, राइट। ये बताना है, फाइंड आउट दैट हर एंड माइन व्हिच टाइप, दिस इज द प्रोनाउन, possessive pronoun or possessive adjective, and like this also tell that mine is possessive pronoun or possessive adjective। ये ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए आप, जैसे और बता दीजिए सर। यहां देखिए आपको पता चलेगा, लिसन हियर, हिज पेन, राइट। यहां लिखा है माई पेन और नेक्स्ट लिखा आपका, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दिया गया है आपका माइन, MINE, माइन, YOURS, योर्स। ये ध्यान दीजिएगा, योर्स लिखा है, HERS, हर्स। ये ध्यान से देखो जरा आप, हिज के बाद आफ्टर हिज आई हैव रिटन अ नाउन पेन, लिखे हैं क्या? यस सर। माई के बाद यहाँ पे लिखे हैं पेन, राइट। तो अगर हिज हर या और भी ऐसे वर्ड आते हैं, योर आता है, इट्स आता है, दियर आता है, अगर इसके बाद कोई नाउन आएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इनके बाद कोई नाउन दिया गया है तो ये हमारे कहे जाएंगे पसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव प्रोनाउन, क्या बोलेंगे? पसेसिव, बोलिए एडजेक्टिव कहा जाएगा। लिसन अगेन, हिज, हर, माई, योर, आवर,
दियर के तुरंत बाद अगर कोई नाउन दिया है तो हम उसको बोलेंगे पसेसिव एडजेक्टिव। आर यू हियरिंग मी बेटा? यस सर। जरा रिपीट करिए, हमने क्या बोले हैं, रिपीट अगेन। यस सर। सर पहले हीज या हर होगा, उसके बाद नाउन आएगा तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। वेरी गुड, वेल डन। अगर इनके Yes, sir. बाद जैसे यहाँ पे देखो हर दिया है क्या? Sir, your video is paused. लिसन हियर, इन द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन हियर हियर, हर लिखा है, हर लिखा है। यस सर। एंड आफ्टर Sir, your आई हैव video आल्सो is paused. रिटन द मदर, मदर, तो हियर इज मदर Sir, इज your नाउन। video is paused. मदर इज नाउन, यस सर, तो क्रॉस हो जाएगा। दिस इज द रीजन दैट हर इज कॉल्ड द पसेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव। यस, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है पसेसिव प्रोनाउन और पसेसिव एडजेक्टिव। पसेसिव एडजेक्टिव के लिए आपको क्रॉस लगा देना है। तो यहाँ पे जो आपका क्रॉस या इनकरेक्ट बोल रहे हैं वैसे इसको क्रॉस बोलेंगे, तो आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए आप, ये लिखा है माइन, क्या लिखा हुआ है? माइन। माइन। यस, माइन हो सकता है, यहाँ भी लिख दिया हमने माइन, योर्स, हर्स, दियर्स, इसमें एस लगे रहेंगे बेटा, माइन में नहीं लगा रहेगा। लेकिन योर्स, हर्स आपका, और हो सकता है दियर्स हो सकता है, इट्स हो सकता है, आवर्स हो सकता है। इसके बाद कोई यहाँ पे नाउन नहीं आएगा बेटा। आप देखिए यहाँ पे नाउन नहीं है, क्या दिया गया है? वर्ब, आई एस इज वर्ब क्या हुआ है? यस सर। आर यू सीइंग हियर? यस सर। बेटा हम ये कह रहे हैं कि आपका माइन के बाद, ये माइन, योर्स, हर्स के बाद, इसके बाद अगर मान लीजिए कोई वर्ब आता है, यहाँ पे नाउन नहीं आना चाहिए। अगर नाउन आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो पसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव। यस, पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाएगा जो अगर नाउन दिया गया हो तो। अगर नाउन ना दिया हो, Yes, sir. कोई वर्ब दिया हो, कोई और वर्ड दिया गया हो, तो वह पोसेसिव पोसेसिव Pronoun. कहा जाएगा। Yes, यस, यही आपका डिफरेंस है। कोई डाउट आपके लिए? यस। नो सर। किसी को एनीबॉडी डाउट? नो डाउट सर। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देते हैं, देखते हैं कि No, sir. आप समझ गए या नहीं। सर थर्ड नंबर में क्रॉस होगा ना? यस बेटा। थर्ड नंबर पूछ रहे हैं। चलिए अभी बता रहे हैं नेक्स्ट नंबर। हम आप लोगों Yes, के sir. आंसर ले रहे हैं कि व्हाट इज योर आंसर। थर्ड नंबर, सी हियर, ये लिखा है माई कार। ध्यान दीजिएगा, माई कार इज बिगर देन हर कार। माई कार इज बिगर देन, ध्यान दीजिएगा, हर कार। स्टूडेंट्स यू आर सीइंग? यस सर। यहाँ देखिए लिखा है माई कार और यहाँ पे लिखा है हर कार। Possessive adjective. जरा ये Sir, बताइए ये माई Possessive हर को adjective. क्या बोलेंगे? पसेसिव एडजेक्टिव या पसेसिव Adjective. प्रोनाउन? Sir, possessive pronoun पोसेसिव होगा, एडजेक्टिव कार है। है। इस समय सर adjective होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। यस, सर वेरी इस समय वेरी सर इस समय सर वो रहेगा possessive adjective, क्योंकि सर नाउन है आगे। यस, वेरी गुड, वेल डन। हम यही करना चाह रहे थे कि माई या हर, योर, आवर, इट्स, आगे नाउन है। माई, Yes, sir. इट्स, नाउन दिया और है यस सर। तो इन दैट केस Yes, sir. माई इज कॉल्ड एंड हर इज कॉल्ड व्हाट इज पसेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेटा। Adjective sir. अगर Yes, मान sir, लिया कि possessive noun नहीं adjective. दिया, Possessive कोई और वर्ड दे दिया गया है, जैसे आपका वर्ब हो सकता है, तो तो ऐसे पोसेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव Possessive कहा pronoun. जाएगा, Noun. प्रोनाउन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो उसके बाद वर्ब रहेगा सर। सर क्या बोले हैं, एक बार और बोलिए। आफ्टर दिस सर नाउन के अलावा कोई और रहेगा तो पोसेसिव प्रोनाउन sir. होगा। नाउन नहीं रहेगा, वर्ब रहेगा तो सर possessive pronoun होगा। प्रोनाउन हो को जाएगा। छोड़ करके कोई सा भी वर्ड आएगा तो पसेसिव प्रोनाउन कहा जाएगा, और नाउन Yes, आएगा sir. तो पसेसिव एडजेक्टिव। बस दो बात समझ लो। एडजेक्टिव। डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट। हाँ। क्रॉस हो जाएगा इसमें ना। यस बेटा। अब Yes. आगे देखिए क्या नेक्स्ट नंबर। द कैट एट इट्स फूड इन द हरी। सर आने दीजिए, कर लेंगे। एक क्वेश्चन इन लास्ट। द कैट एट Yes, sir. इट्स ठीक फूड रहेगा।
is food in a hurry. In a hurry. It's food. Right? See here. The cat ate its इसमें food भी in क्रॉस a हो hurry. जाएगा सर. First alap, I am going to found in this sentence Possessive which pronoun word है is ये. possessive adjective or Possessive possessive pronoun. pronoun. You can see here. Here is given the It's word, eat right? food. Pronoun. Here is Possessive adjective given है. the noun, right? Yes sir, yes sir. It means Yes sir, it possessive is adjective also होगा. possessive adjective. Any doubt? Yes sir. Adjective. बोलिए. Yes No, sir. तो sir. सर Yes, beta. सर आगे क्रॉस फिल कर देंगे. Yes, yes. Yes sir. The last sentence, see and tell what is your static answer. Yes Is sir. this you? The children of yours, सर इसमें भी क्रॉस होगा. yours are very noisy. Very noisy. N-O, right? क्रॉस होगा इसमें. N-O-I-S-Y, right? See here, beta. You can see here, here is, I have written the word yours. Y-O-U-R-S, right? And सर ये सब possessive pronoun होगा ये. Pronoun होगा. Verb है, possessive pronoun होगा. Yes, beta. Your answer Yes, is sir, possessive absolutely pronoun. right. Well सेकंड done. नंबर है सर right है ना? Yes, सर sir. आंसर मेरा right है ना? बिल्कुल ठीक कर दी. Yes. Yes sir. कोई डाउट किसी को? Anybody doubt? फिफ्थ No नंबर sir. है. No No, any sir. doubt sir. Yes, in the bracket you can tick and remain of this exercise sentences I will send you, right? You come. Yes Yes, sir. चलिए नेक्स्ट बेटा. अब आइए नंबर Yes, जी. sir. जी एक्सरसाइज जी. Distributive pronoun sir. यस बेटा. Distributive pronoun. जस्ट आफ्टर एफ के बाद आपको बेटा आ रहा है अभी जी. एक्सरसाइज जी भी दिया हुआ है, राइट? एक्सरसाइज जी. आर यू हियरिंग मी बेटा? Yes sir. यस एक्सरसाइज जी. एक्सरसाइज 1 by 1 करते हैं. कम से कम इसमें 2-4 देखिए आप. सी हियर. Yes sir. Write the correct Possessive possessive pronoun in the following sentences. Write the It belongs to me. correct possessive pronoun. Possessive pronoun. Pronoun in the following sentences. In the following sentence. ध्यान दीजिएगा. राइट द करेक्ट possessive. आपको क्या लिखना है? प्रोनाउन. ये ध्यान रखना है आपको. लिसन हियर द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस. इट बिलोंग. ध्यान दीजिएगा. इट बिलोंग्स टू मी एंड इट्स. ध्यान दीजिएगा. इट्स और स्पेस दिया गया है, राइट? ये देखते हैं कितने लोग इसके आंसर सटीक दे रहे हैं. पहले समझिए आप. हमने अभी लिखा है possessive pronoun, राइट? आर यू हियरिंग मी बेटा? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. मी, माई एंड एम आई एनी माइन. देख रहे हैं आप लोग ये? Yes sir. आई, मी, माई और माइन. तो ये आपका आई सब्जेक्ट होता है. आपका ये मी जो दिया गया ऑब्जेक्ट होता है. मी आपका पसेसिव जो है एडजेक्टिव होता है. और माइन जो दिया गया है पसेसिव प्रोनाउन, राइट? तो ये ध्यान दीजिएगा. इट बिलोंग टू मी. इट बिलोंग्स टू मी. यह मेरा है, यह मुझसे संबंधित है, राइट? तो इट तो आपको दे ही दिया गया. इसे कोई मतलब नहीं है. अगला आपको प्रोनाउन दे दिया गया है मी. अकॉर्डिंग टू मी. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. कोई सॉन्ग गा रहा है. कोई गाना. This is not good idea. Please just stop, please. Anybody who Yes, Yes sir. sir. Mute मत करिए. Yes sir. Mute मत No, करिए. अब sir. बोलिए आप. Totally right. just see in this sentence, it is also pronoun,
and me is also pronoun. But already here already use it according to subject it. Now you have to use here possessive pronoun according to me, right? According to me आपको यहाँ पर me के अनुसार possessive pronoun क्या आएगा ये आपको फील करना है. हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दिया, ये देख सकते हैं, आई, मी, माई और माइन. ये भी हमने कर दिया है. हियर आई इज यूज एज अ सब्जेक्ट, मी इज एज ऑब्जेक्ट, माई यूज एज एडजेक्टिव, possessive adjective, and mine is used as a possessive pronoun. और possessive pronoun ही लिखना है, तो I will write here mine, M-I-N-E, right? Please show your face also that I can find the answer by moving your hands. I have written here mine, right? Aditya Singh, you are taking rest, beta. This is not good idea. Please alert and see. These all things are going on for you all. So please utilize your time and see here. I have written here mine. Mine is the possessive pronoun. Also I have written here. Okay. अब देखिएगा नेक्स्ट, एक और देखिए आप, समझ में आएगा आपको. नेक्स्ट नंबर, it belongs to, sorry, it belongs to my father. My father, right? Just it apostrophe s, and here given the space. See here, beta. It belong to my father. It is. और इसके बाद यहाँ पे you have to fill the possessive pronoun. इसका क्या होता है देखिए, father के अनुसार, according to father, right? You have to fill here the possessive pronoun. Father is the male, and we can always use for the male he. जैसे हम लिखते हैं आपका, कहीं भी देख सकते हैं आपका he, उसके बाद आपका होता है him, फिर आपका his, और आपका यहाँ भी his ही होता है, राइट? ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये पसेसिव आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये पसेसिव जो है आपका प्रोनाउन हो गया. क्या? ये हिज पार्ट, राइट? तो यू कैन राइट हियर आल्सो HIS, ओके, अकॉर्डिंग टू फादर. In this way also you can fill the others. I am going to unmute. Please be quiet and listen. Your time is off. चलिए सी हियर, ही इज राइट. अब आइए नेक्स्ट नंबर बेटा, नेक्स्ट एक और देखिए. अनम्यूट करते हैं, आप आंसर दीजिए, आवाज नहीं दीजिए बेटा. सर हिज लिखे हैं. HIS. यस, यस सर, HIS. यस, ही, हिम, हिज और हिज, इसका पसेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, राइट? Yes. आई हैव रिटन हिज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी ये फादर, राइट? फादर के अनुसार मेल है, और मेल के लिए ही लगता है प्रोनाउन, और उसके ही के अनुसार आपका जो है पसेसिव प्रोनाउन इज हिज. एक और देखिए, इसका आंसर आप दीजिए. यस, इट बिलोंग, हर का सर हर्ष. यस, इट बिलोंग्स टू हर, एंड जस्ट आफ्टर दिया गया है इट, एपोस्ट्रोफी स्पेस. जरा आप बताएं, व्हाट इज द सटीक आंसर ऑफ दिस स्पेस? एनीबॉडी? हर्ष. वेरी गुड, Yes, वेल Yes, sir. Horse होगा. हर्ष. यस बेटा, हर्ष. ये रोहित and other students, beta, you have any problem? You all were understanding or not? Yes, sir. ये आपको, Yes, sir. yes बेटा. We are अब ये understanding. personal pronoun में these all things I have already explained, मैंने बता रखा है. Yes, sir. और आपके बुक में भी दिया गया. Yes, You sir. can see here also in your books, if you Yes, are sir. available the books, you can see the chart. Yes, पेज नंबर sir. आपको दिया गया 30. Yes, sir. Yes बेटा. चलिए आइए पेज देखिए. नंबर 39. Yes. हर्ष.
नेक्स्ट यस सर। exercise सब we will done. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चलिए आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। इस तरीके से आप करिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव नेक्स्ट प्रोनाउंस। ये बताइए इसमें कोई डाउट है? एक दो और एग्जाम्पल बता दें। नो No, सर, sir. नो डाउट। No, sir. चलिए आइए No, sir. नेक्स्ट द डिस्ट्रीब्यूटिव No any प्रोनाउन। doubt, sir. प्रोनाउन Sir, इसका definition बताइए. एनीबॉडी सिंगिंग अ मेक सॉन्ग। नॉइस। बेटा बी क्वाइट, इसी वजह से आपको अनम्यूट करना पड़ता है। तो गाना गा रहे हैं सर। बी क्वाइट। म्यूट कर डिस्ट्रीब्यूटिव दीजिए। प्रोनाउन ध्यान दीजिएगा। व्हेन द प्रोनाउन इच, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सी हियर, व्हेन द प्रोनाउन इच either EITHER, either, neither, right, refer to, REFER, refer to, REFER, ठीक है, FER, refer to Sir, either person or मतलब things। हालांकि. Sir, either मतलब हालांकि. बताएंगे बेटा, या तो हालांकि भी हो सकता है, या तो भी कर सकते हैं। पर्सन Yes. आर थिंग्स, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं, बस 1 सेकेंड। यस, 1 यस सर। at a time, they are called, Distributive yes, noun. distributive pronoun, distributive Votive pronoun. pronoun, yes। ये ध्यान दीजिएगा, लिसन हियर। ये दिया गया, हियर इज द 3 वर्ड्स गिवन, ईच, आइदर, नाइदर, राइट। ईच प्रत्येक, मीनिंग इज प्रत्येक, राइट। हम बोलते हैं एवरीबॉडी या ईच बॉय विल कम हियर, प्रत्येक लड़का आएगा। लाइक दिस ईच, आइदर या तो, इसकी मीनिंग क्या आएगी? या तो, या तो या और फिर. नाइदर मींस नहीं तो, राइट। लिसन अगेन, आइदर मींस या तो, और नाइदर या मींस फिर. नहीं तो, नेगेटिव। refer to person or things, यानी these 3 words each, either and neither will refer person, व्यक्तियों के लिए, or things means non living things, only refer। तो in this way this type each, either, neither are called the distributive pronoun, right। Listen again, each, either and neither are those words by which we refer only person or things। तो this type the words are called, या this type the pronouns are called distributive pronoun। Let us see the Yes, sir. some example। आइए कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं, इससे और क्लियर होगा। फर्स्ट Yes. आप एक्सरसाइज एज पे आप आ जाएं। एज, हियर इज गिवन द स्पेस and of the student thus is of exact the about student this is, इसमें of each होगा ना सर। the students is excited, EXCITED, excited about this project, about this Project. project, PROJECT, राइट। और ब्रैकेट में दिया गया ऑप्शन ईच और आइदर, EACH, राइट। नाइदर है एंड सर। जस्ट आपका है नाइदर, Yes, sir. NEITHER, THER. यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट अलाप यू शुड ट्राई टू फाइंड द सटीक meaning of the sentence। if you are eligible to find the static meaning, sure you will select the right option। पहले इसकी मीनिंग निकालिए। ये दिया है, आप द स्टूडेंट्स इज एक्साइटेड, क्या जी, अबाउट दिस प्रोजेक्ट, यानी सभी विद्यार्थियों, जितने ऑल स्टूडेंट जो प्रेजेंट sir. थे, दे वर एक्साइटेड,
वे सभी एक्साइटेड थे किसके लिए, अबाउट दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट के तो लिए। यहाँ पे ये देखना है क्या बेटर होगा। सपोज यू आर स्टूडेंट, each. सपोज यू आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज सिटिंग in the class, teacher came there and he said to them that please come and see the project. So hearing this type the questioning, yeah, this type the suggestion, all the student of that particular class automatic without any other reason they are excited to see the this project. उसी तरीके से कोई भी जब व्यक्ति हो, बस हमारी कोई पर्सन हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी किसी चीज को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएगा और सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो इट मींस हियर इज द सटीक आंसर इज ईच। Each. यस बेटा, ESCH. CH CH. ESCH ईच हो Each. जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे Yes. हैं कि फर्स्ट ऑल आप यू शुड ट्राई टू फाइंड द सटिंग मीनिंग। बेटा अगर मीनिंग निकाल लेते हैं ऑटोमेटिक आपका माइंड सेट हो जाएगा। व्हाट इज द सटिक ऑप्शन? एनी Yes, डाउट? sir. No, sir. चलिए नेक्स्ट इसमें नंबर। इधर होगा सर। Sir, time 4 minutes left. Yes, only one sentence, please see. Less than 4 minutes left. Yes, yes. Only one sentence. Of the two will get the cup. Of the two will get the सर इसमें इधर होगा ना। yes. Here is Sir, option either Sentence पहले लगा ले. either or चलो A, मीनिंग पता है तो क्या yes. हुआ। ध्यान दीजिएगा। You have given either or each. What is the static answer according to you? First, allow find out the meaning of this sentence. Of the Yes, sir. two will get the cup. Right? इन दोनों में से कौन जो है कप को पाना चाहेगा? What is the static answer? सर इधर। either. Either का मतलब Yes, है sir. या तो। Either ही है. या Either. तो। यहाँ पे दिया गया Yes, each. sir. What is the static? इसका मतलब each of the Sir, two either. will get the cup. इसका मीनिंग आएगी कि दोनों में से प्रत्येक लोग कप पाएंगे। कप का सेंस है either रिवर्ड, राइट? अगर आप either का इस्तेमाल करते हैं तो you can also find here, feel here either. What meaning is coming out? Either of the two will get the cup. या तो दोनों Yes, लोग जो है sir. इसका मीनिंग आएगी either के अनुसार या तो दोनों लोग कप पाएंगे। तो व्हाट इज द सटीक? Yes, sir. ये correct है. सटीक. हाँ, व्हाट इज Either. सटीक? आइदर और ईच। इधर सर। बोलिए। Either. Either. One or two students are replying, others are not replying. इधर सर। यस, चलिए आइदर लगा Sir, दीजिए। either. EITHER आइदर ईच ऑफ द क्या चीज? Either टू सटीक विल को। ऑफ द क्या चीज? विल गेट। अगर मान लीजिए हम आइदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको भी देख लीजिए। इच का इस्तेमाल। अगर हमने ईच का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग ये आएगा कि दोनों, ईच मींस प्रत्येक का दो ही लोग हैं। दे आर टू ओनली पर्सन, टू स्टूडेंट्स। तो ईच टू का मतलब दोनों ही क्या पाएंगे? कब। और आइदर का मतलब है या तो दोनों में से क्या कोई एक। कोई एक। कोई Yes, sir. एक विजेता होगा. यस, तो इसमें सबसे बेटर आपको क्या हो जाएगा? आइदर। इधर दो है। पर्सन है, दे आर टू पर्सन, Yes, sir. ओनली वन पर्सन विल गेट अ कप। एनी डाउट? कप. No, No, sir. sir. तो लाइक दिस योर टाइम इज Yes. अबाउट टू जस्ट ओवर। तो Yes, sir. Less than 1 minute. Thank you, sir. यस बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम। सर स्कूल कब खुलेगा? क्लास है भी सर। After completing this process, is mean 9 the 12 are going on, and if near about after 1 month there no complaints, again this classes to the CBSE. After that CBSE take the decision that what will be happen about the junior classes or lower classes. Yes, Till sir. now you should Yes. wait बेटा, आपको wait करना चाहिए, right? Yes, sir. Yes, sir. इंतजार करना चाहिए. Bye, Yes, और sir. घर बेटा। पर रह कर पढ़ना चाहिए. Well done. Bye, sir. Bye, sir. Okay बेटा, bye.